Good morning, students. The topic that we are going to discuss today is the grievance redressal procedure followed under Consumers Protection Act. But before understanding how the grievance handling system is being conducted, first we need to understand the one important concept and the important points related to it. That is, the very first important concept that we need to understand is who is a consumer. A consumer in general is one who uses or consumes any goods or avail any kind of services. ठीक है, तो वो बंदा जो कुछ भी खरीदता है या किसी भी तरह की सर्विसेज को अवेल करता है, he or she will be considered as a consumer. But according to this act, a consumer is the person who buys any good for price or consideration, or who has already paid or promised to pay the price, or who has partly paid or promised to pay the price, or who has purchased any product or service under the scheme of deferred payment, or who is the user of such good when such use is made with the approval of the buyer, or who does not obtain the goods for resale or for any commercial purpose. इसका मतलब क्या है? एक कंज्यूमर, एक बंदा, आप कंज्यूमर उसको कब बुलाओगे? तो सम कंडीशंस आर बीन गिवन. जैसे सबसे पहले क्या है? हु हैज बाइड द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर प्राइस. कोई भी उसने गुड्स परचेज किया है या किसी भी तरह की सर्विस उसने अवेल किया है अपने प्राइस, जो भी उस गुड्स की या सर्विसेज की प्राइस है वो पे करने के बाद, या हु हैज पेड और प्रॉमिस टू पे दी प्राइस. जिसने गुड खरीद के प्रॉमिस ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है गुड का या सर्विसेज का, या प्रॉमिस कर रहा है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो उसका पेमेंट कर देगा. या हु हैज पार्टली पेड और प्रॉमिस, जिसने अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज 10,000 का प्रोडक्ट है या कोई भी 10,000 के रिलेटेड वो सर्विस अवेल किया हुआ है, तो 10,000 में से 5,000 ही हैज ऑलरेडी पेड एंड रिमेनिंग ही इज प्रॉमिसिंग टू पे आफ्टरवर्ड्स. और who has purchased any product or service under scheme of deferred payment. Deferred payment is nothing but a system of installment, जहाँ पे you are purchasing the goods and the remaining price of the product will be paid with the help of EMI or installment. That is your deferred payment. Or who is the user of such good when such use is made with the approval of the buyer. यानी buyer कोई और है और वो जो उस गुड्स को यूज करने वाला यूजर कोई और है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ क्रेडिट कार्ड and if my brother requires to use the facility of my credit card, then I can give him my credit card and he can do the purchase on my behalf. So but however my approval for using the credit card should be there. And last is who does not obtain goods for resale or any commercial purpose. That is, अगर मैंने कोई भी goods purchase किया है, it should be solely meant for my self consumption only. I should not purchase that good with an intention to resell it back to some other party. So then only I will be termed as a consumer. So these are the conditions which are to be fulfilled in order to call any person as a consumer. Now these points it will go for purchasing of the product as well as for availing of the services as well. However, now who is not termed as a consumer? According to provisions of Consumer Protection Act, the following person will not be termed as a consumer. ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स है उसका अगर नो में हो जाता है तो he or she will be not termed as consumer. जैसे कि if I have obtained any goods for resale, then I won't be considered as consumer. Similarly, अगर मैंने कोई भी goods यूज कर रही हूँ without approval of the buyer, then I will not be termed as a consumer. Similarly, if I have obtained any goods without paying any price, I won't be considered as consumer. Similarly, if I have avail any services without any payment, then I won't be considered as consumer. So this condition will define who will be termed as consumer and who will be not termed as consumer. Now the other important aspect is who can file a complaint. So these are the list of people who can file a complaint against under the consumer forum. They are any consumer, any registered consumer association, central or state government, one or more consumer on behalf of numerous consumers, or a legal representative of a deceased consumer. ठीक है, so consumer I think it is self understood. कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है या कंज्यूमर फोरम ग्रुप है वो कर सकती है. सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी एज अ कंज्यूमर ऐसे, यानी अगर उन्होंने कोई कंपनी से जैसे बल्क में कोई खरीदी किया हुआ है इन ऑर्डर टू सेल इट थ्रू पीडीएस सिस्टम और वो सेटिस्फाई नहीं है, तो इवन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फाइल अ कंप्लेन.
देन वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, यानी अगर कोई एक ही तरह के प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे कंज्यूमर लोगों का कंप्लेन है तो हर लोग जाके कंप्लेन करे, उससे बेटर क्या है, उनमें से कोई एक या दो कंज्यूमर्स उनके बिहाफ में भी कंप्लेन कर सकता है। या फिर अगर कोई कंज्यूमर मर गया है और उसके अगेंस्ट मतलब उसने कोई परचेस किया हुआ है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो उसका कोई अगर कोई भी लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव होगा तो इवन दे कैन फाइल अ कंप्लेन। So these are the two important points that you should know, that is who is a consumer or who is not, and who can file a complaint against under the consumer forum. Now let us try to understand how the grievance or the complaint redressal procedure works. A consumer grievances they are redressed under the 3-tier setup. जो भी हमारा redressal system होता है वो 3 tier के अंडर होता है। Now why it is a 3 tier? सो अगर कोई भी कंज्यूमर कंप्लेन करता है तो सबसे पहले ही हैज टू गो विथ थ्रू डिस्ट्रिक्ट फॉरम ओनली। इफ द डिसीजन जो भी प्रोवाइड है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है देन इट विल गो टू स्टेट कमीशन, एंड वहां पे भी सेटिस्फाई नहीं होता है देन ही और शी में गो टू नेशनल कमीशन। सो दिस आर दी 3 tier सेटअप। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अंडर द 3 tier सेटअप। सो लेट्स सी हाउ दिस redressal procedure work. First is the district forum. Now this district forum it consists of a president and 2 other members, जिसमें से एक कंपलसरी एक वुमन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट कौन होगा, तो प्रेसिडेंट विल बी एनीवन हु इज अ रिटायर्ड और अ वर्किंग जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड दे आर टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इस डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन से तरह की कंप्लेंट्स होगी, तो जिस कंप्लेन की प्राइस, ठीक है, कंप्लेंट्स अप टू ₹20 लाख कैन बी फाइल्ड ओवर हियर। नाउ एक बार आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपने कंप्लेन कर दिया तो जो भी जिसके अगेंस्ट भी कंप्लेन आया है और नोटिस विल बी सेंड टू दैट कंप्लेन people to the people against whom the complaint has been launched, and if it is required by the district forum then it can whatever goods are there जिसके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट फाइल हुई है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट या जिसके भी अगेंस्ट में है, तो दैट गुड्स कैन बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन द लैबोरेटरी एंड द डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन गिव द डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट। अगर अग्रीव पार्टी सेटिस्फाई जो भी डिसीजन डिस्ट्रिक्ट फोरम ने दिया है और अगर अग्रीव पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन तो इट कैन सेंड एन अपील टू बी फाइल्ड अंडर द स्टेट कमीशन, बट इट शुड बी डन विद इन 30 days by depositing ₹30,000 or 50% of penalty whichever is less. So this will be first tier. Under second tier जो भी डिसीजन डिस्ट्रिक्ट फोरम में सेटिस्फाई नहीं हुआ है इट कैन बी चैलेंज अगेंस्ट द स्टेट कमीशन। सो व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द स्टेट कमीशन, अगेन उसमें बंदे कौन हो गए, तो प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, जैसे सेम डिस्ट्रिक्ट फोरम में थे सेम वे में यहाँ पे भी प्रेसिडेंट और 2 मेंबर हो गए जिसमें से 1 शुड बी अ वुमन। प्रेसिडेंट कौन होगा, सो प्रेसिडेंट मस्ट बी अ रिटायर और अ वर्किंग जज ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ हियर कौन से टाइप के कंप्लेन को ध्यान में रखा जाता है, तो कंप्लेन विथ मोर देन 20 lakhs अप टू 1 crore आर फाइल ओवर हियर। एक बार सिमिलरली जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में था यहाँ पे भी जैसे ही कंप्लेन रिसीव होगा तो गुड्स कैन बी सेंड फॉर टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी इफ रिक्वायर्ड एंड द टोटली वॉट एवर डिसीजन इज टू बी डन दैट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट रिपोर्ट। However, here if the agreed party is not satisfied with the verdict of the court, then appeal can be filed with the National Commission within 30 days by depositing either ₹35,000 or 50% of the penalty, whichever is less. So that is the second tier, and under the third tier, that is the National Commission. Again यहाँ पे कौन हो गए, तो it will consist of a president and the 4 members. 4 members हो गए, पहले 2 में सिर्फ 2 members थे, लेकिन यहाँ पे टोटल 4 members हो गए, जिसमें से अगेन 1 has to be a woman. यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन होगा, तो प्रेसिडेंट कैन बी अ रिटायर्ड और अ वर्किंग सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहले 2 केस में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू था, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। यहाँ पे कौन सी तरह की कंप्लेन होगी, सो कंप्लेन विच वैल्यू इज मोर देन 1 crore कैन बी फाइल्ड अगेन अंडर द नेशनल कमीशन। नाउ अगेन हियर ऑल्सो द नेशनल कमीशन इफ रिक्वायर्ड दे कैन सेंड द गुड्स फॉर टेस्टिंग, इट विल लिसन टू बोथ द पार्टीज एंड देन इट विल गिव द जजमेंट। एंड अगेन हियर अगर जो भी डिसीजन नेशनल कमीशन ने दिया है अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो इट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट अगेन विद इन 30 days इफ द अग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। सो दिस इज हाउ द 3 tier setup will work. Now the next topic that we are going to see are the reliefs that are available to the consumer. Under the Consumer Protection Act, every complaint जो भी complaint होगा it has to be solved within 3 months. और अगर जरूरत पड़ी तो कोई भी इंक्वायरी करनी होगी तो इट हैज टू बी डन विद इन 5 months. इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड
आफ्टर डूइंग ऑल दी प्रोसीडिंग, लीगल प्रोसीडिंग्स करने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है जजमेंट के थ्रू, तो इट कैन ऑर्डर और गिव फॉलोइंग डायरेक्शंस टू दी सेलर और दी सर्विस प्रोवाइडर. So what are those directions that will be given to the seller, or what are the benefit that or release that can go to consumers are? The very first is to remove the defects in goods or deficiency in the services. अगर गुड्स में कोई डिफेक्ट है या सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी है तो उसे रिमूव करने का ऑर्डर कर सकते हैं, या तो पूरे का पूरा रिप्लेस कर सकते हो, टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू वन, या तो फिर अगर कोई भी प्राइस पे किया है तो उसका रिफंड भी मांग सकते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है. या फिर अगर कोई भी रीजनेबल कोई भी लॉस हुआ है या इंजुरी हुई है, ठीक है, जो भी कंज्यूमर को अग्रीव पार्टी से, तो कंपेंसेशन कैन बी पेड, या फिर पुनेटिव डैमेजेस कैन ऑल्सो बी पेड टू अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस, ठीक है. सो दिस आर फ्रॉम द रिलीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस सम डिसीजंस कैन बी ऑल्सो टेकन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर्स. सो व्हाट कैन बी दोस? तो ऑर्डर कैन बी इशू टू द सेलर टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी उनको ऑर्डर दिया जा सकता है कि अब तक आपने जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किए हैं अब उसको बंद कर दो, और आपको प्रॉमिस करना होगा कि फ्यूचर में वो कभी भी रिपीट नहीं होगा. या तो फिर नॉट टू पुट हजार्डियस गुड्स ऑन सेल, या फिर ऑलरेडी डन हुआ होगा, ऑलरेडी आपने हजार्डियस गुड बेच दिया होगा तो आप तुरंत उसको विड्रॉ कर दो. या फिर उनको ऑर्डर आप दे सकते हो कि जो हजार्डियस गुड का मैन्युफैक्चरिंग है उसी को आप बंद कर दो. या फिर जो भी अमाउंट है सर, जो भी सेलर है, ही हैज टू पे द अमाउंट, that amount should not be less than 5% of the value of the defective goods or deficient services provided, and it can be credited under the consumer welfare fund. या फिर अगर उसने कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दिया होगा तो उसको करेक्ट करना. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टू पे एडिक्वेट लीगल कॉस्ट टू द अग्रीव पार्टी. सो these are the various reliefs that are available to the consumer. Now only one last topic is left, that is the role of consumer organization and NGOs, that we'll see tomorrow. Thank you.